Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through data resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज मोहम्मद अली जिन्ना। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको मालूम है कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? यस, एक सब कॉन्टिनेंट के ब्रेव लीडर थे। ये एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इल्लामा इकबाल के का जो एक आइडिया था टू नेशन थ्योरी का, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था और पाकिस्तान बनाया था। और यही रीज़न है कि इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म एक ऐसे लीडर थे जो कि अपनी हार्ड वर्किंगनेस और इसके साथ साथ अपनी फोरसाइटनेस की वजह से बहुत मशहूर थे, यानी कि दूरअंदेशी और मेहनत, बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे। सो रीडिंग देखते हैं। अब स्टोरी को रीड करने से पहले आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डज कायद-ए-आज़म मीन? कायद-ए-आज़म यानी कि एक अजीम कायद, एक अजीम लीडर, अ ग्रेट लीडर। Now, Pakistan is one of the biggest Muslim state in the world. It is the result of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's untiring efforts that he united the Muslim of the subcontinent under the Muslim League banner and carved out Pakistan. Quaid-e-Azam was a selfless leader who was the real benefactor of his people. Muhammad Ali Jinnah combined in himself the rare gifts of sincere heart and a high intellect. Recognizing his brilliant and brave leadership, Muslims called him their Quaid-e-Azam, great leader. The establishment of Pakistan brought great responsibilities on his shoulders. As the head of Pakistan government, he had to build the newly born state from scratch. His strong will and administrative ability enabled the new state to overcome its initial difficulties within a short span of 1 year. Pakistan had displayed its financial as well as administrative stability. Quaid-e-Azam laid greatest stress on the financial stability of Pakistan. He worked out a sound economic policy, established an independent currency and a state bank for Pakistan. Quaid-e-Azam was a leader of very considerable foresight. He had realized that provincialism was the greatest threat to the solidarity of the country. He warned his people, have you forgotten the lesson that was taught to us 1300 years ago? So what is the use of saying we are Bengalis or Sindhis or Pathans or Punjabis? No, we are Muslims. You belong to a nation. You have carved out a territory, vast territory. It is all yours. It does not belong to a Punjabi or a Sindhi or a Pathan or a Bengali. It is yours. Quaid-e-Azam was equally uncompromising in favor of making Urdu as the only state language of Pakistan. He was on his sick bed when he learned that an agitation against Urdu was started by the interested person at Dhaka. Disagreeing medical advice, he went all the way to the Dhaka in March 1948 and advised the East Pakistan brethren, let us make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Therefore, so far as the state language is concerned, Pakistan's language shall be Urdu, and anyone who disrupts this unity and misleads you in really the enemy of Pakistan. I must warn you to be aware of the fifth columnist. Our official use in this province, the people may choose any language they wish. There can, however, be only one lingua franca. That language should be Urdu and cannot be any other. The state language therefore must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by 100 million Muslims of this subcontinent, a language which is understood throughout the length and breadth of Pakistan, and above all a language which more than any provincial language embodies the best, which is Islamic culture and Muslim tradition, and is nearest to the language used in other Islamic countries. It is not without significance that Urdu has been driven out of the Indian Union and that the official script of Urdu has been disallowed. The founder of Pakistan had given his final verdict on the controversy of the state language of Pakistan, but also he did not live to see that it
that his followers had forgotten his valuable advice soon after his death. Quaid-e-Azam was a great champion of minorities. He guaranteed full freedom and equal partnership for the minorities in Pakistan. Addressing the Pakistan Constituent Assembly once, he said, "You are free to go to your mosque or to any place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the fundamental principles that we are all citizens and equal citizens of one state." Quaid-e-Azam did not live long to witness the progress of the state which had founded his excessive work soon confined. That has nothing to do with the fundamental principles that we are all citizens and equal citizens of one state. Quaid-e-Azam did not live long to witness the progress of the state which he had founded. His excessive work soon confined him to bed. Disregarding medical advice, he devoted much time to his official work, which impaired his health, and after a protracted illness, he died on September 11, 1948 at Karachi. The entire nation was plunged into the grief on his passing away at a time when he was needed the most. Now, अब हम difficult words की meaning देखेंगे. Initial, शुरुआत की. Display, किसी चीज़ को दिखाना ताकि सब लोग आसानी से देख सकें. Writing, कुछ लिखना. बेनिफैक्टर, एक ऐसा बंदा जो पैसा या कोई और अपनी एफर्ट लगाकर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई चीज़ स्टार्ट करता है. कार्व आउट यानी कि किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से खड़ा करना बड़े पैमाने पे. इंटेलेक्ट, ज़हीन, जहानत का. रिकग्नाइज, पहचानना. फाइनेंशियल, कोई ऐसी चीज़ जो कि माशी तौर पर कनेक्टेड हो पैसे के साथ. कंसिडरेबल यानी कि इम्पॉर्टेंस, जिसको हम बेसिकली इसके बारे में सोच सकते हैं या बात कर सकते हैं. फॉरसाइट, दूर अंदेश होना. सॉलिडेरिटी यानी कि किसी ग्रुप को सपोर्ट करना. अनकॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि जिस पे किसी भी किस्म का आप कह लो कि चेंज ऑफ बिहेवियर या चेंज ऑफ आपका ओपिनियन नहीं होगा. टेरिशरी, एक ऐसा लैंड जो कि आप डेजिनेट कर देते हो एक एरिया कि ये इस बंदे का या इस लीडर का या इस कंट्री का है. डिसरिगार्डिंग यानी किसी चीज़ को कंसीडर ना करना. लिंगुआ फ्रैंकवा, एक ऐसी शेयर्ड कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो कि लोग अपनी मादरी ज़बानों से हट कर करें. जैसे कि हमारी उर्दू है, बाकी तमाम ज़बानें अलग हैं, कहीं सराइकी है, पश्तो है, पंजाबी है. ये ऑब्वियसली क्लियर तौर पे. आप देखते हैं उर्दू ट्रांसलेशन. पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासतों में से एक है. ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों का नतीजा है कि उन्होंने बरे-सगीर के मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे तले मुत्तहिद किया और पाकिस्तान की तश्कील की. कायद-ए-आज़म एक बेलौस रहनुमा थे जो अपनी कौम के हकीकी मोहसिन थे. मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अंदर खलूस दिल और आला अकल के नायाब तोहफे समेटे. इनकी शानदार और बहादुर क़यादत को तस्लीम करते हुए मुसलमानों ने इन्हें अपना कायद-ए-आज़म यानी कि अजीम रहनुमा कहा. क़याम पाकिस्तान ने इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां ला दी. पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह के तौर पर इन्हें नौज़ायदा रियासत को शुरू से तमीर करना था. इनकी मजबूत क़ुव्वत इरादी और इंतज़ामी सलाहियत ने नई रियासत को इस काबिल बनाया कि वो एक साल के कलील अरसे में अपनी इब्तदाई मुश्किलात पर काबू पा सके. पाकिस्तान ने अपनी माली और इंतज़ामी इस्तेकाम का मुज़ाहरा किया था. कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के माली इस्तेकाम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया. उन्होंने एक मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाई. पाकिस्तान के लिए एक आज़ाद करेंसी और स्टेट बैंक कायम किया. कायद-ए-आज़म इंतहाई दूर अंदेश रहनुमा थे. वो जान चुके थे कि सूबायत मुल्क की यकजहती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है. उन्होंने अपनी कौम को मुतनबा किया. क्या तुम उस सबक को भूल गए हो जो हमें 1300 साल पहले सिखाया गया था? हम बंगाली, सिंधी, पठान या पंजाबी हैं कहने का क्या फ़ायदा? नहीं, हम मुसलमान हैं. आप इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके लिए आपने ख़िता वसी इलाका बनाया है. ये सब आपका है. ये किसी सिंधी, पंजाबी, पठान या बंगाली का नहीं, ये आपका है. कायद-ए-आज़म उर्दू को पाकिस्तान की वाहिद रियासती ज़बान बनाने के हक़ में उतने ही गैर समझौता करने वाले थे. वो अपने बिस्तर मर्ग पर थे जब उन्हें मालूम हुआ कि ढाका में उर्दू के ख़िलाफ़ एजिटेशन शुरू कर दी गई है. तो तभी मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए वो मार्च 1948 में ढाका चले गए और जाकर मशरक़ी पाकिस्तानी भाइयों को मशवरा दिया कि आइए हम आप पर वाज़ा कर दें कि पाकिस्तान की रियासती ज़बान उर्दू होगी और कोई और ज़बान नहीं. लिहाजा जहाँ तक रियासती ज़बान का ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की ज़बान उर्दू होगी और जो भी इस इत्तेहाद में खलल डाले और आपको गुमराह करे वो दर हकीकत पाकिस्तान का दुश्मन है. मैं आपको ख़बरदार करता हूँ कि 5th कॉलम निगारों से होशियार रहें. इस सूबे में सरकारी
इस्तेमाल के लिए अवाम अपनी मर्जी की ज़बान चुन सकते हैं, ताहम सिर्फ एक ही लिंग्वा फ्रेंका हो सकता है और वो ज़बान उर्दू होनी चाहिए और कोई दूसरी नहीं हो सकती। लिहाजा रियासती ज़बान यकीनन उर्दू होनी चाहिए, एक ऐसी ज़बान जिसकी परवरिश इस बड़ी सगीर के 100 मिलियन मुसलमानों ने की है, एक ऐसी ज़बान जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में समझी जाती है और सबसे बढ़कर एक ऐसी ज़बान जो किसी भी सूबाई ज़बान से ज़्यादा इस्लामी सफ़ाकत और मुस्लिम रवायत में सबसे अच्छी चीज़ को ज़ाहिर करती है और दीगर इस्लामी ममालिक में इस्तेमाल होने वाली ज़बानों के करीब तरीन है। ये बेमायनी नहीं है कि उर्दू को हिंदुस्तानी यूनियन से बाहर निकाल दिया गया है और उर्दू के सरकारी रस्मुल ख़त की इजाज़त नहीं दी गई है। बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रियासती ज़बान के तनाज़े पर अपना हतमी फैसला सुना दिया था, लेकिन वो ये देखने के लिए जिंदा ना रह सके कि इनके पैरोकार इनकी वफात के फ़ौरन बाद इनकी कीमती नसीहत को भूल गए थे। कायद-ए-आज़म अजीम थे, उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए मुकम्मल आज़ादी और मसावी शराकत दारी की ज़मानत दी थी। पाकिस्तान की दस्तूर साज़ असम्बली से एक बार खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या ज़ात या मुस्लिक से हो सकता है, इसका बुनियादी असूलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि हम सब एक रियासत के शहरी और मसावी शहरी हैं। कायद-ए-आज़म ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सके कि वो इस रियासत की तरक्की का मुशाहिदा कर सकें जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी। तभी मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़्यादा वक्त अपने सरकारी काम में लगा दिया, जिससे उनकी सेहत ख़राब हो गई और तवील अलालत के बाद 11 सितंबर 1948 को कराची में उनका इंतकाल हो गया। पूरी कौम इनके इंतकाल पर गम में डूबी हुई थी, जब सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।